Hello. Yes, sir. I think it is clear to all of you. Hello. ABC is clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I'm sharing the document. I'm sharing the document. Okay. You give me the answer. Can you see something? ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर. ब्लैक स्क्रीन आ रही है. उसको बंद करूं मैं? स्टॉप शेयरिंग करूं पहले? Can you see my name? Yes, sir. Okay. Can you see my name? Yes, sir. Okay. I'm sharing second document. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now the third document. Is it clear? Can you see? Yes, sir. Particulars, introduction, growth, maturity, decline. Yes, sir. Okay. Now I should start. ये बाकी टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ? जी सर. ऐसी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अच्छा. चलिए. I am starting with target costing. I have given you introduction in my last class कि टारगेट कॉस्टिंग जो होती है उसका फर्स्ट पर्पस क्या होता है कि यू वांट टू मेक ए प्लान. प्लानिंग पार्ट में इट हेल्प्स यू. ओके. प्लानिंग. दूसरा क्या है कि योर डिजायर प्रॉफिट. तीसरा मार्केट ड्रिवन. ठीक है. एक्चुअली में टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये करते हैं, प्लान करते हैं कि कैन वी मेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट और नॉट. If yes, then can we achieve our desired profit or not? And it is a market driven. What is the competitors are producing? Can we meet with the competitor also? So it is a market driven. So it is helping you in decision making at the planning stage, at the desire stage, desired profit stage, at the market driven stage. Okay? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? अब जिसको एबीसी समझ में आ गया है, जिसको एबीसी समझ में आ गया है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. एबीसी में हम लोग एबीसी के अंदर एबीसी एबीसी कॉस्टिंग के अंदर वी आर यूजिंग ए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम वेयर एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड and then we are finding out the cost drivers and then we are homogenizing this thing and then after making a future plan. There is no effort by a cost accountant to reduce the cost or to make
the more product more competitive. Here in a target costing, the role of cost accountant is very important, because target you can achieve by a two method. One is called total cost. Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. You can use this method also, or second method is design. You improve the design, revise the design, and try to make less costly for competitiveness. ये क्या हो गया, छोटा क्यों हो गया? Design, revised, and try to make less for competitiveness. ओके, ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो Yes. बच्चों। तो अब आपको जो एबीसी कॉस्टिंग में मैंने पढ़ाया है, द सेम प्रिंसिपल यू हैव टू यूज. अब इसमें सम टाइम the cost accountant has to assume, suppose there is a production of 1000 यूनिट, तो आप नेक्स्ट जो कंसीडर करेंगे वो 2000 यूनिट कंसीडर करेंगे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, और उसके बाद आप कंसीडर करेंगे 4000, मींस डबल करते चले जाएंगे. ठीक है? अरे बोलो बच्चा. हेलो. Yes, sir. ये करने का फायदा क्या है मालूम आपको? व्हेन यू आर डबलिंग, so your total cost will 15 to 20% will come down. 15 to 20% will come down. It will come down 15 to 20%. अब जब 15-20% गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे? डबल करते जाएंगे और ट्राई टू अचीव कि आपका जो ओनर है वो आपसे जो चाह रहा है प्राइस, क्या वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि इफ मार्केट डिमांड इज 5000, if market demand is 5000 and you say कि 20000 पे जाके हमारा जो है वो डिजायर जो है वो कॉस्ट आएगी. तो उस समय हमें ये देखना है कि whether we should produce or whether we should not produce. So when you are making a 20,000, then you are getting a desired cost. But 20,000 market demand is 15,000. तो 15,000 को जो rest of the material है, जो rest of the product है, where you will keep it? You will keep in a warehouse. So when you are keeping in a warehouse, then your inventory cost is also there. And second thing is that your capital is blocked. Your everything is blocked, and unnecessarily you are producing 20,000 rupees. So your owner or company owner will say, I will not produce this thing. So it will help you in taking a proper decision at the time of target planning, that whether we can achieve or we cannot achieve. Is it clear? आगे बढ़े. Yes, sir. चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल है. एक कंपनी है वो दो टाइप के प्रिंटर्स प्रोड्यूस करती है. टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर. ठीक है? उसमें दो तरह के कॉस्ट हैं. एक डायरेक्ट कॉस्ट है और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. ये तो आपको मालूम है. हेलो. अब ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए. जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखिए. पहला लिखिए मटेरियल हैंडलिंग. मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ. मटेरियल हैंडलिंग जो है उसका जो कॉस्ट है वो ₹1.20 ₹1.20 पर पार्ट है.
ये नोट करते जाइएगा। दूसरा जो है असेंबली, ये जो है 40 पैसे, 40 पैसे पर आवर। और असेंबली टाइम। थर्ड, मशीन इंसर्शन पार्ट। .70 machine insertion manual insertion. Quality testing. ये पहले आप नोट कर लीजिए। हेलो, Yes, sir. ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ से है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मटेरियल हैंडलिंग लिखा हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्ट्स। हेलो Yes, sir. हेलो, ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ लिखना जरूरत तो नहीं है मुझे यहाँ पे, है? No, sir. लिखने की जरूरत तो नहीं है। नंबर ऑफ पार्ट्स है। अरे बोलो बच्चा, असेंबली में आवर्स। अरे बोलो ऑफ Yes, sir. असेंबली। ये कर समझ में आ गया ना आप लोगों को? Yes, sir. हैं? चलिए नेक्स्ट, ये तीसरा वाला नोट कर लीजिए। मशीन इंसर्शन, मशीन इंसर्शन पार्ट्स। ये नोट कर लिया? 70 पैसे है, 70 पैसे। हेलो, .70 है मशीन इंसर्टेड पार्ट। और मैनुअल इंसर्शन जो है ₹2.10 पर पार्ट है। और क्वालिटी टेस्टिंग जो है ₹25 है। हेलो, Yes, sir. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए अब जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो प्रिंटर 1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंटर 1, प्रिंट 1। प्रिंटर, अब यहाँ पर पहला लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 407.5 रुपीज। प्रिंटर 2 का 292।
1.10. Number of parts. Number of parts. <clears throat> 85 or 46. Assembly time. Two point two. 1.9. Machine assembly by machine. Forty-nine parts. Thirty-one parts. Manually. 36. Quality testing. चलिए, अब आपको पहले दोनों प्रिंटर का कॉस्ट निकालना है। जिस तरह आपने मतलब पहले निकाला था वैसे ही आप आराम से निकालिए, ठीक है। दोनों प्रिंटर की कॉस्ट पहले मेरे को बताइए ट्रेडिशनल स्टाइल से, फिर मैं इसको टारगेट कॉस्टिंग हिसाब से बताऊंगा फिर, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ, ये मशीन हैंडलिंग में नंबर ऑफ पार्ट्स है जिसमें ₹1.20 पर पार्ट खर्च हो रहा है। असेंबली आवर्स में 40.4 आवर्स पर असेंबली टाइम है। मशीन इंसर्टेड में 70 पैसे खर्च हो रहा है। मैनुअल इंसर्शन में ₹2.10 खर्च हो रहा है। क्वालिटी टेस्टिंग में ₹25 खर्च हो रहा है। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ 407.5 एंड 292.10। नंबर ऑफ पार्ट्स दिया 85, असेंबली टाइम 3.2 दिया हुआ है, असेंबली बाय मशीन 49 दिया है, मैनुअली 36 दिया हुआ है और क्वालिटी 1.4 दिया हुआ है। इससे आप कॉस्ट निकाल लेंगे। अरे बोलिए, Yes, sir. कॉस्ट निकल जाएगी। Yes, sir. बड़े सिंपल तरीके से निकलेगी। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ जी तो सर। हाँ, तो निकालिए फिर, निकालिए। मैं करूं या आप लोग कर लेंगे?
हेलो, चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। 407.5। ये तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। हेलो, Yes, sir. ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। Yes, sir. लिख दूं यहाँ पे? Yes, sir. मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, Yes. अब सेकंड काम क्या करना है? अब इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है। Yes, sir. तो उसके लिए क्या करेंगे? पहला क्या करेंगे? Material handling. मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग को हम कैसे करेंगे? बोलिए। 1 रुपये 20 पैसे। Into number of parts. एक, ये मशीन पार्ट्स 1 रुपये 20 पैसे है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें टोटल निकालना है 85। ये आएगा? Yes, sir. ये कितनी वैल्यू आई बताइए? 102। 102। जी सर, यस सर। अच्छा, और नेक्स्ट वाले का? 55.2। 55.2. 55.2। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? असेंबली। असेंबली। हाँ, असेंबली में कितना है, कितने आवर है? 3.2। Yes, sir. तो 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना कॉस्ट क्या है? 40 पैसे। 0.40। हाँ, 0.40। 0.40। यहाँ कर यस सर। लेंगे? यस सर। हाँ, कितना आया इसका आंसर? 1.28। 1.28। 28। और दूसरे वाले का? 0.76। 0.76. 0.76। यस सर। अच्छा, और तीसरा क्या है? मशीन Machine. इंस्ट्रक्शन। मशीन असेंबलिंग। हाँ, मशीन। Yes, sir. बोलिए, इसका क्या रेट है? 0.70. 0.70। 0.70 मल्टीप्लाई मल्टीपल 49। 49। ये कर दें, कितना आ रहा है? 34.3। 34.2। हाँ, नेक्स्ट। इसका बताइए। 21.7। हैं? 21.7। 20 1 21। 21 हाँ, 7। 0.7। ये आ गया सबको? यस सर। फिर मैनुअल इंसर्शन। यस सर। हाँ, मैनुअल इंसर्शन में बताइए क्या रेट है? 2.10। 2.10. 2.10 मल्टीप्लाई 36। मल्टीप्लाई बाई 36। 36। हाँ, इसका कितना आ रहा है? 75.6। 75.6। और दूसरे वाले का? 31.5। 31.5। 5। और उसके बाद क्वालिटी। क्वालिटी टेस्टिंग। क्वालिटी। यस सर। Yes. हाँ, उसका 25 रुपए है। 25 रुपये सर। 3.2 है, आवर्स लगते हैं। यस सर। तो कितना हो गया? सर 1.4 लग रहे हैं जी। हैं? 1.4 है। Quality test time, sir, 1.4. 1.4 है। 1.4 है? अच्छा अच्छा, यस मैं सर। वो गलती कर गया हूँ। 1.4 35. है। 35। ये 35 आ गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट वाले का? 27.5। 27.5। 5। ये सब हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट तो बता दीजिए। कॉस्ट ओनली सर, कॉस्ट एट 407.5। Sir, 655.68। हैं? 655.68. एक मिनट। यहाँ पे कितना आया इसका?
655.68. 655.68 68. Yes, और sir. दूसरे वाले का 428.76. 428 .76. Yeah. 76. है 76. यार आप लोगों ने Seven- कैलकुलेशन गलत किया है, आप लोगों का कैलकुलेशन गलत आ रहा है। ओए बच्चा, Yes, sir. यहाँ पे आना चाहिए था, टोटल कॉस्ट जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 248. 782 आनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो है आप लोग कैलकुलेशन ठीक से चेक करिए जरा, 504 आनी चाहिए थी, ये चेक करिए जरा। ये 1.28 नहीं है यार, ये 128 है। हेलो, Yes, sir. ये कुछ गड़बड़ असेंबली में क्या ठीक है? Assembly time, sir. गड़बड़ है, 128 होना चाहिए था। सर फिर आपने 3.2 लिखाया था, वहां पे 32 होगा, क्या चीज? वहां पे 40 होगा सर ओनली। फिर असेंबलिंग टाइम जो ऊपर लिखवाया ना फिर आपने 0.40 लिखाया, वो 40 होगा फिर। 40 पैसे की जगह 40 रुपये होगा ना सर। 40 होगा सर। 40 है, 40 है, 40 है, फिर हम 40 कर लो, 40 कर लो। ओके सर। बस यही गड़बड़ थी। यही गड़बड़ थी सर। हाँ बस, हाँ अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, यही आ रहा है बच्चे, यहाँ पे ठीक कर लो जरा। हाँ सर 782.40। यही आ रहा है, इसमें मैंने कहाँ गड़बड़ किया था, मैं इसको ठीक कर दूं जरा। सर ऊपर 40 लिखा, जहां पे 0.40 ये लिखा, ये रहा सर। इसको ठीक कर लेना जरा बच्चा, यस सर। ठीक है? अब ठीक है, ये कॉस्ट आ गई आपकी। यस सर। अब वो बोलता है, हेलो, यस सर। टारगेट कॉस्ट लिखिए, टारगेट कॉस्ट फॉर प्रिंटर। सर ये कौन से पेज पे है? मैंने लेट ज्वाइन किया है। ये पेज पे नहीं है बच्चा, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, अच्छा ठीक। ठीक है? जरा नोट कर लो तुम, अभी स्क्रीन पर है, अभी मैं लिखा देता हूँ तुमको। टारगेट कॉस्ट प्रिंटर इज 680, 680 प्रिंटर 1 और एंड प्रिंटर 2 का जो कॉस्ट है वो 390 है, ठीक है? हेलो, यस सर। अब रिवाइज उन्होंने डिजाइन किया, रिवाइज डिजाइन, रिवाइज डिजाइन, ठीक है? तो रिवाइज रिवाइज डिजाइन किया तो आपके नंबर ऑफ पार्ट्स और सब वो नए आ गए। हेलो, आवाज बहुत आ रही है तुम्हारी, डबल बहुत आ रहा है। हेलो, यस सर। जब रिवाइज किया तो उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स और सब बदल गए, तो लिख
अच्छा मैं ऊपर ही उस पर करेक्शन कर दूं? हेलो, इसमें ही जी करेक्शन सर। कर दूं? जी सर। हाँ, मैं बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे लिख दो 381 381.2 और यहाँ पे आ गया 263.1। ये 71 आ गया और ये 39 2.1। अच्छा ये नया रिवाइज डिजाइन है, तो यस सर। ये रिवाइज डिजाइन है। आप इस पे दोनों की कॉस्ट निकालो और कैन बी अचीव 680 और 390 और नॉट, यही आपको फाइंड आउट करना है। हेलो, यस सर। तो अब आप इसको कॉस्ट निकालिए और चेक करिए कि कैन बी अचीव दिस टारगेट और नॉट। ये आप लोग की एवरीडे क्लास होती है या फिर गैप भी होता है बीच में? एवरी डे है सर। एवरीडे। मुझे असल में ज्यादा क्लासेस चाहिए थी, मैं उसको बोलूंगा जरा। और कोई कन्वीनियंट टाइम हो जिसमें आप आ सकते हो? हेलो, Afternoon.
एक्चुअली मैं सोच रहा सर आफ्टरनून में ले सकते हैं। था आफ्टरनून में कितने बजे, 2 बजे से 4 बजे तक, यस सर। या 12 से 2? 12 से 2 भी सही है सर। 12 से 2 ठीक रहेगा सर। 12 से 2 ठीक रहेगा, आपको 2 घंटे का टाइम भी मिल जाएगा, रेस्ट कर लेंगे, फिर 4 बजे से फिर क्लास कर लेंगे। हाँ जी हाँ सर हैं? Yes, सर sir. यस। एक्चुअली मेरे कोर्स बहुत ज्यादा है और मुझे Yes, sir. Much needed. हैं? Much needed, sir. हाँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ पूरा कोर्स आपको खत्म करा दूं, क्योंकि मुझे अभी ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाना है, स्टैंडर्ड पढ़ाना है, मार्जिनल पढ़ाना है, फिर बैकफ्लैश अकाउंटिंग पढ़ाना है, और फिर बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सब्जेक्ट है। तो मैं 10 दिन कंटिन्यूस आपकी क्लास ले लूंगा और हर रोज, तो आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, आप फिर अपनी तैयारी करिए जाके। हेलो। Yes, Thank sir. you, sir. यस हाँ, सर। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं विशाल से बात करता हूँ, तो एवरीबडी से मतलब फीलिंग गुड कि 12 से 2 क्लास हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों Yes, को। sir. Yes, sir. Feeling happy. अच्छा, तो मैं 10 दिन कंटिन्यूस ले लूँ आपकी। हेलो। Yes, sir. Sure, sir. 10 दिन कंटिन्यूस लेके खत्म करूँ आपका कोर्स? यस Yes, sir. यस सर। हाँ, नहीं किसी को ऑब्जेक्शन हो तो अभी बता दे, नहीं तो बाद में लेटर लिखेगा वो चेयरमैन को। नहीं सर, हाँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं sir, no objection. नहीं, पहले यू शुड गिव मी, आप एक काम करिए, यू शुड टॉक टू द विशाल फर्स्ट कि हमें क्लासेस भाटिया सर बोल रहे हैं कि हम 12 से 2 ले लेंगे, 10 दिन कंटिन्यूस लेके खत्म कर देंगे कोर्स। सर आप ही बात कर लीजिए, वो तो हम तो नहीं, मैं रेडी। तो कर लूंगा, लेकिन आप लोग पहले बात करेंगे, फिर मैं उसको इंडोर्स कर दूंगा। नहीं, मेरे को मना नहीं करेंगे वो लोग, मेरे को आप क्यों? आई एम द ओल्डेस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मैं चाहे कितनी क्लास ले लूं, लेकिन ये है कि आपका एग्जाम आने वाला है और मैं नवंबर भर पढ़ाता रहूंगा, तो फिर तो आप एग्जाम कब देंगे? जी sir. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको 10 दिन कंटिन्यूस लेके आपका कोर्स खत्म कर दूं। यस सर, यस सर। तो 1 नवंबर से आई एम प्लानिंग कि मेरी थर्ड और इस बार तो 2 क्लास है, फ्राइडे और वेडनेसडे मेरी फर्स्ट है, तो 2 क्लास इसमें आ जाएगी, 5 क्लास और ले लूंगा, और नेक्स्ट वीक में 2 और क्लास ले लूंगा, तो मेरा आपका काफी कोर्स खत्म हो जाएगा। हेलो। It's better for us, sir. हाँ, The 10 Better continuously, for sir. us. हेलो। यस 10 सर। days Yes. continuously work, sir. एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन? तो फिर मैं नहीं No. लूंगा, और No, no, objection नहीं तो मैं ले लूँ। No objection, sir. नो no ऑब्जेक्शन। objection. चलिए, मैं अभी अभी आपके सामने बात करता हूँ विशाल। आप लोग करिए, क्वेश्चन करिए आप लोग। फोन नहीं उठा रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया टारगेट कॉस्टिंग का? हेलो। Yes, sir. बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? जी सर। Yes, हाँ? sir. चलिए अब आगे Yes, स्टार्ट। sir. आपने कर लिया, निकाला आपका कॉस्ट? चलिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसका कितना था? 381.2। 280। अच्छा, और दूसरे वाले का? 263.1। Sir, it's 381.2. है? First वाले का 381.2.
चलिए, हो गया। Yes, sir. मशीन आवर में बताइए क्या आ रहा है, कितने पार्ट्स हो गए अब? 71 पार्ट्स हैं सर पहले वाले के। 71। तो इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है? 84। एक की 84 आ रही है, और दूसरे वाले की? की सर 85.2 आएगी। क्या आप लोग फर्स्ट तो कैलकुलेट कर रहे हैं? 85.2 है, 85.2 मशीन हैंडलिंग। चलो आगे, सेकंड वाले की? 46.8। 46.8, यही सबका आ रहा है? हाँ सर, यस सर। अच्छा, और तीसरे इसमें असेंबली टाइम कितना रिड्यूस हो गया? असेंबली सर 84 हो गया। नहीं नहीं, कितने टाइम? 1.6 है? असेंबली टाइम 2.1 एंड 1.6। 2.1 है। यस सर। और इसके कॉस्ट कितने आ गए? 84। 84। और दूसरे वाले की? 64। 64। नेक्स्ट, मशीन मशीन इंसर्शन। यस सर। कितने हो गए? 51। 59। 59 एंड 59। अच्छा, इसका कॉस्ट कितनी आ रही है? 51.3। 41.3। 3। और दूसरे वाले का? 20.3। 20.3। 20.3 3। या 21.3? 20.3। 20.3 सर। 20 और मैनुअल। हाँ, मैनुअल में? 2.1 इंटू हाँ, 2.1 है। आगे कॉस्ट पार्ट्स कितने हैं? 12। 12। 12। इसमें कितना हो गया? 25.2। है 25.2। 25.2। और उसका दूसरे वाले का? 21। 21। और नेक्स्ट, क्वालिटी, यस सर। इसका कितना है? 1.2। हाँ, कितना हो गया? 30। 30। और दूसरे वाले का? 22.5। 22.15। 5 नहीं 0.5। 22.5। बस। यस सर। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई अब, जोड़ के बताइए। 646.9। 6, 646.9। बोलिए 6, 46.9। 646.9। और दूसरे वाले यस का? सर। 437.7। 437.7। हेलो, यस 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 सर। सर। ये आ गया। अब आप यस सर। देखिए, कंपनी ने टारगेट रखा था 680 का, एंड यू हैव अचीव प्रिंटर 1 अंडर 680। यस सर। और सेकंड वाले में 390 रखा था, और आपका टारगेट कितना आया है? 487। तो आप किसको प्रोड्यूस करेंगे? 1 को। खाली 1 को प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड को नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक किताब से क्वेश्चन कराऊं, किताब में जो क्वेश्चन दिए वो भी करा देता हूँ। चलिए। सर ये जो प्राइस डिजाइन है ये गिवन होगा? हाँ, ये सब दिया हुआ, ये सब दिया हुआ। ये टारगेट कॉस्टिंग किस पेज पर है आपके? 10 पर। है पेज नंबर 10। 10 पे? मेरे तो 16 आ गया है। नहीं सर, बुक का पेज नंबर। अच्छा, ये टारगेट कॉस्टिंग। ये इलस्ट्रेशन 6 है। यस सर। चलिए पहला यही करिए, इलस्ट्रेशन 6 है।
लोग मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते 8 से 10? हेलो, यस सर। आप लोग मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते 8 से 10? चलिए 12 से 2 पढ़ लेंगे ना। चलिए मैं आप कोशिश करता हूँ, खत्म करता हूँ आपका कोर्स। 12 से 2 ही खत्म करता हूँ। ये बी सर 12 मैन्युफैक्चरिंग से का, 2, हाँ 12 से 2 12 या से 8 2 से, ही रहने दीजिए सर। 12 से 2 रहने दें। यस सर। मेरे को स्पेशली फिर आना पड़ेगा ना। चलो भारद्वाज की क्लासेस भी है ना, हैं? भारद्वाज की क्लासेस भी होती हैं सर, 12 से 2 ही ठीक है। बाकी किसकी क्लासेस होती हैं? भारद्वाज इंस्टीट्यूट की भी क्लासेस ले रहे हैं ना रिविजन की। तो पहले उनसे पूछूंगा है कि उनके पास स्लॉट है कि नहीं है, ये भी देखना है ना। अच्छा, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट ऑफ 1000 per unit ड्यू टू कंपटीशन, इट्स कंपटीटर आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाय 15%। इसका मतलब वो 850 रुपए पे बेचना चाह रहा है। हेलो, बी यस वांट्स टू यस डिस्काउंट सर। एग्रेसिवली बाय कटिंग प्राइस बाय 20%। इसका मतलब वो 800 रुपए में बनाना चाह रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू मार्केट जो है, वॉल्यूम 1,50,000 है और वो इंक्रीज करना चाहता है 2 लाख पे, और 10% का टारगेट प्रॉफिट रखना चाहता है सेल्स पर, प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस आपको कैलकुलेट करना है।
Did I help you? ये टारगेट पर कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया कि वो 20% रिड्यूस करना चाहता है 1000 का, तो 800 हो गया, उसका 10% उसका प्रॉफिट है, तो टारगेट कॉस्ट कितनी हो गई? 720। हेलो, यस सर। ये क्लियर है? जी सर। चलिए नेक्स्ट, उसमें क्या किया उसने? डायरेक्ट मटेरियल निकाल दिया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर जो दिया हुआ है, मशीन कॉस्ट दिया हुआ है, और डायरेक्ट वो दिया हुआ है। सर हो गया सर। हो गया? अच्छा, अब मैं यस सर, एक छोटा इजी है सा, सर। हाँ सब इजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इसको डायरेक्ट कॉस्ट समझ में आ गई है, वो एबीसी समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं सोच रहा हूँ कौन सा करवाऊँ, एक करवा देता हूँ और। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लीजिए, बस लास्ट। हेलो, ये इलस्ट्रेशन यस नंबर सर। 8 कर, ये 8 कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं फटाफट लाइफ कॉस्ट स्टार्ट कर देता हूँ, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन फटा कर लीजिए, फिर मैं कर देता हूँ स्टार्ट।
क्वांटिटी दिया हुआ है 10,000, सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। हेलो, यस सर। सेल्स प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा आपका। कितना आ रहा है? 8 6 14, अच्छा 25,000 का प्रॉफिट चाहिए उनको। यस सर। और सेल्स प्राइस जो है वो 32 रुपए चाहिए। अच्छा, 10,000 की जगह 12,000 यूनिट चाहिए। हाँ आसान है, ये सब क्वेश्चन तो आसान लग रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, खाली सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है बस। हेलो, यस सर। कर लीजिए क्वेश्चन, कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ लाइफ साइकिल।
हो गया सर। हो गया? हेलो? यस सर। हाँ, सबका आ गया समझ में? हेलो? should I explain you? हेलो? यस सर। एक्सप्लेन करूं? जी सर। हाँ चलिए ठीक है। ये कंपनी ने अब जो प्रॉफिट है वो 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, बजटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट क्या हो गया? हेलो? फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, उसमें फिक्स कॉस्ट और एडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आप ऐड कर दीजिए। हेलो? जी सर। यस सर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा आपका। यस सर। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम 12,000 हो गया है। जी सर। तो अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1,93,500 में 12,000 को डिवाइड कर दीजिए, जी। तो पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन निकल गया 16 रुपए 12 पैसे। यस सर। और टारगेट सेलिंग प्राइस कितना रखा कंपनी ने? 32 रुपए, 30 से 32 कर दिया। यस सर। तो अब आपने 16.125 माइनस कर दीजिए, तो टारगेट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? हेलो? अरे Yes, सेलिंग sir. प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है ना। जी सर। तो ये मिल गई। यस सर। अब वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अब उसमें से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। हेलो? यस सर। तो आपका आ गया? अरे बोलो बच्चा। यस सर। हाँ, अब उसके बाद रिवाइज लेबर उन्होंने चेंज कर दिया लेबर, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी हो गई? 4.5x। और अभी आपने निकाला लेबर प्लस वेरिएबल कॉस्ट 7.85, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी आवर्स में। अरे आ जाएगी कि नहीं? यस सर। अब उसको इक्वल कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल गई 1.75 आवर्स। तो 12,000 यूनिट में 1.75 करेंगे, इतने आवर्स आपका आ गया। हेलो? जी सर। और आपको कितना टारगेट दिया गया है? टाइम कितना दिया गया था? टारगेट टारगेट के हिसाब से आपने अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया? हेलो? सर इसमें तो पूछा है टारगेट लेबर। असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू। अच्छा, लेबर टाइम ही कैलकुलेट करना था। यस सर। हाँ, तो आपने कर लिया। अब ये बाकी क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। हेलो? अब मैं लाइव पढ़ के स्टार्ट कर देता हूँ, आज ये खत्म कर देता हूँ। करूँ? जी सर। और बाकी लोग नहीं बोल रहे कोई। यस सर, करिए करिए सर। यस सर करिए सर। करूँ? यस यस सर। चलिए फिर। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर। यस सर। सबसे पहले जब हम
ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर, तो ये उम्मीद करके चलते हैं कि 20-25 साल इसकी लाइफ है। अरे बोलो बच्चा। यस सर। तो हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। जी पहले सर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कितना फ्लाईओवर बनाने में खर्चा आएगा। हेलो। यस सर। और उसके बाद पर ईयर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, यस सर। पे कितना खर्चा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अब इसमें आप बोलेंगे कि जो खर्चा आना है तो इस पे कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है इसमें? तो कॉस्ट अकाउंटेंट ये देखता है कि यदि हम 100 करोड़ का फ्लाईओवर बना रहे हैं और 2 करोड़ रुपया हमारा पहले 2 साल का खर्चा आ रहा है, तो हम जो है कितना पेट्रोल सेव कर रहे हैं, जैम को सेव कर रहे हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा बचा रहे हैं, हम लॉट ऑफ थिंग्स आर सेविंग, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। हेलो। यस सर। और जो आदमी है, जो जर्नी थी वो 1 घंटे में पूरी करनी थी, अब वो फ्लाईओवर बनने से वो 40 मिनट में पूरी कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो अब वो 20 मिनट जो टाइम सेविंग है उसके अंदर वो पेट्रोल और सब कुछ बाकी चीज सेव कर रहा है, जी सर। तो ये भी प्रॉफिट है। यस सर। तो यही चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर ये कंपनियां फ्लाईओवर या कोई बिल्डिंग बनाती हैं, तो यदि आप शेयर बाजार में भी जाते हैं तो ओवर द इयर्स के लिए आप सोचते हैं। जैसे किसी ने रिलायंस का शेयर ले लिया, वो बेचेगा नहीं, वो बोलेगा मैं 15 साल के लिए बेचूंगा ही नहीं। क्यों? तो उसको मालूम है रिलायंस जो है वो 15 साल के अंदर मेरे जो शेयर है उसका 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपया हो जाएगी। हेलो। यस सर। तो इसलिए वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर जाता है। अब जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं, पहले दूसरा आपको सॉफ्टवेयर कंपनियां जितनी भी होती हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है, यस सर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती हैं। किस सॉफ्टवेयर को कैंसिल करना है और किस सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाना है, जिसकी लाइफ अच्छी है, जो प्रॉफिट अच्छा दे रहा है उसको कंटिन्यू करना है, और जो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसकी लाइफ को बढ़ाना है। तो जितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स आपके सॉफ्टवेयर के बिकेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब, हेलो, यस सर। तो इसीलिए वर्जन निकालते हैं हम लोग, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5। ये इसलिए निकालते हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं और उसकी लाइफ को एक्सटेंड करते चले जाते हैं। और जब लगता है कि इतने इंप्रूवमेंट करने के बाद भी हमारा सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। हेलो। यस सर। Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो हम क्यों पढ़ते हैं पहले हमें ये जानना चाहिए। अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? नहीं सर, ब्लैक दिख रहा है वो सब। अरे ये कैसे हो सकता है? अच्छा मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। मेरे में तो दिखा रहा है। दिख रहा है सर, शायद उनके में प्रॉब्लम होगी कुछ। हमें तो दिख रहा है। मैंने रोक दिया उसको, फिर से शेयर कर देता हूँ। जी। अब दिखाई दे रहा बच्चा? नो सर मैं एक बार दोबारा लॉगिन। चलो हमें करो दिख रहा करो। है की तरफ प्रॉब्लम है। सबको दिखाई दे रहा? यस सर। चलिए, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है?
लाइफ साइकिल। और अब दिखाई दे रहा बच्चा? यस सर। नहीं, उसको उसको जो बोल रही थी कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। वो है नहीं सर अभी क्लास में। अभी ज्वाइनिंग लॉग करेंगे आउट सर। लॉग इन कर लेंगे सर। हैं? वो है नहीं सर। लॉग आउट लॉग इन कर रहे हैं। अच्छा, लॉग इन कर रहे हैं। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? आप अपनी लाइफ को देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है? इन्फेंट, अरे यही होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? यंग, उसके बाद क्या हो जाता है? मैच्योर, और उसके बाद क्या हो जाता है? यही होता है। और इसके साथ अटैच होता है H। अब दिखाई दे रहा है उसको? यस सर। चलिए, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, चलिए चलिए। हमारी लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला कहलाता है बाल्यावस्था, दूसरा कहलाता है आपका, क्या होता है दूसरा, कौन सा होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था। और तीसरा होता है आपका क्या होता है? तीसरा कौन सी अवस्था होती है? चलो, वृद्धा अवस्था, यौवन यौवन। युवा, हाँ। और उसके बाद फिर वृद्ध अवस्था, यही होती है। यस सर। अच्छा, चलिए। अब आपके सबसे पहली चीज क्या होती है वो देखिए। जब आप बच्चे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत खर्चा होता है। अरे, खर्चा होता है। जी सर। क्या एक्सपेंडिचर होता है? दूध। अरे, आपका स्पेशल दूध बनता है, यस सर। आपके लिए स्पेशल बिस्तरा बनता है, आपके लिए स्पेशल खाना बनता है, और आपके लिए सारा काम स्पेशल होता है। क्योंकि आप जो हैं अभी इतने नहीं है कि वो जो मैच्योर आदमी या ओल्ड एज आदमी या यंग आदमी जो ये खा सकता है, वो चीज आप नहीं खा सकते। तो आप क्या खाते पीते हैं? दूध पीते हैं, फैरेक्स पीते हैं, फिर आपको दाल का दलिया दिया जाता है, फिर धीरे धीरे आपको खाना खिलाने की प्रैक्टिस की जाती है। और आपकी मदर क्या करती है कि स्पेशल पलंग के ऊपर आपके चारों तरफ तकिया लगा देती है कि बाई चांस सोते सोते आप नीचे ना गिर जाएं। आपको तो मालूम नहीं है कि आप पलंग पर सो रहे हैं, आप रोल करते करते नीचे गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो मदर क्या करती है कि आपका एक स्पेशल केयर करती है, 24 आवर्स आपके ऊपर अटेंशन देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और आपका प्रॉफिट क्या है? अरे बोलिए, प्रॉफिट क्या है? कम अरे जीरो। यस सर। क्यों जीरो है? क्योंकि आप कुछ कमा कर नहीं दे रहे, खाली खाए जा रहे हैं। हेलो। यस सर। बहुत एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है जो कि बचपन में पैदा हुआ और उसको फेरेक्स फोटोग्राफ एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उसको उसकी फोटो खींची और आपके माँ बाप को 10 लाख रुपए दे दिया रॉयल्टी में। वो अलग चीज है। या कोई बच्चा 4 साल का या 5 साल का है, वो एक्सेप्शनली सिंगर है, तो यंग लिटिल इंडिया चैंप में गया और वो 1 करोड़ रुपए जीत के ले आया। बट ये हर एक बच्चे का काम नहीं है। तो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, प्रॉफिट इज नील, और आपका अटेंशन और सब कुछ एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है आपकी केयर करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये बात समझ में आ गई? अब जब आप यंग होते हैं, जब आप यंग होते हैं तो आप जो है आपके समाज क्या करते हैं? अरे, आपको मोबाइल खरीद के देते हैं, आपकी पढ़ाई का केयर करते हैं, आपके स्कूटर खरीद के देते हैं, आपको बस का खर्चा देते हैं, आपके खर्चे बदल गए हैं। लेकिन
जितना खर्चा इस बच्चे के ऊपर हो रहा था उससे कम खर्चा होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो होता है, यदि एक हस्बैंड और वाइफ और एक बच्चा है तो समझिए 4 एडल्ट उस घर में रहते हैं। ये 1 चाइल्ड इज इक्वल टू 2 एडल्ट, क्योंकि उसका स्पेशल सब कुछ हो रहा है। अब आप जो है वही खाना खा रहे हैं जो माँ बाप खाना खा रहे हैं, वही पलंग पे सो रहे हैं, तो अब आपकी मदर आपके ऊपर ज्यादा केयर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो आपके ऊपर दूसरी तरह से निगाह रख रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट बदल गया। अब मैनेजमेंट क्या है, तो वो जैसे कोई लड़का है तो वो जैसे ही नहाने गया तो फट से उसकी मदर क्या या उसके फादर क्या करेंगे, उसका मोबाइल फोन देखेंगे और वो देखेंगे कि कौन सी कॉल कर रहा है, किसको उसको कॉल कर रहा है। मालूम पड़ा कि वो जो है शैलजा को बहुत ज्यादा कॉल कर रहा है। तो वो बताएंगे नहीं, जब डाइनिंग टेबल पे वो आएगा तो बोलेंगे कि भाई शैलजा तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, तो आपको लगेगा इनको कैसे मालूम। हेलो, तो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू कि मेरा लड़का जो है किसी ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से भटक ना जाए, इसलिए वो इस दूसरे टाइप की केयर करना शुरू कर देते हैं। वो फिर समझाएंगे आपको कि बेटा ये सब काम मत करो, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ और पढ़ाई करो, जिंदगी बनाओ, ये करो वो करो, तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बदल गया। जो बच्चे पे मैनेजमेंट था उससे कम मैनेजमेंट में अब आपका काम होने लगा। हेलो, Yes, जी sir. सर। और जब लड़का मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योर हो गया, अब सपोज कर लिए कि कोई लड़की यहाँ पर बोलती है कि डैडी मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और अभी उसकी उम्र जो है वो 15-16 साल की है। अब वो शादी की बात करेगी तो क्या होगा, उसके माँ बाप उसको 2-4 थप्पड़ खींच के मारेंगे, बोलेंगे कि तुम्हें अभी अकल तो है नहीं और तुम क्या शादी के बारे में डिसीजन ले रही हो, तुम पहले पढ़ाई करो, फिर जिंदगी बनाओ, फिर उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर मेच्योर लड़की यदि वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गई है या कोई लड़का कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया है और वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो यहाँ पे मेच्योरिटी आ गई है। और वो 1-2 साल सर्विस करने के बाद यदि वो अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे एक लड़का पसंद है, तो माँ बाप उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे, बोलेंगे बेटा उस लड़के को अपने घर में लाओ, हम उसको देखेंगे, यदि हमको पसंद आ जाएगा तो हम शादी कर देंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट बदल गया। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, कोऑपरेटिव हो गया। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, उसको अब प्रोग्रेस कराने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये ओल्ड एज में आपको मालूम है एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है। आप अपने मदर फादर को देखते हैं, वो ओल्ड एज में आ गए हैं, तो आपको एक स्पेशल टाइप की केयर चाहिए होती है। क्या केयर चाहिए होती है कि आप अपनी मदर का हाथ पकड़ के सीढ़ी उतारते हैं। क्यों उतारते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि उसका पैर स्लिप कर गया और कहीं कुछ हो गया तो उसके हड्डी टूट सकती है, या शी इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो उसके लिए आपको अलग कंसेप्ट रखना पड़ता है। उसकी चप्पलें रोज महीने में 2 बार में 2 महीने में आपको एक चप्पल बदल देनी पड़ती है कि पानी में कहीं स्लिप ना कर जाए। उसके लिए टॉयलेट, ये बाथरूम सब परफेक्ट रखना पड़ता है, जिससे कि कोई एक्सीडेंट की वजह से इसको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बदल गया। चारों स्टेज में आप देख रहे हैं कि लेबर में, यंग में, मैच्योरिटी में और इसमें आपका जो है मैनेजमेंट बदलता जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बदलती चली जा रही है। हेलो, यस सर। ये बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। पहले तो ये समझ लीजिए कि लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट में कैसे यूज करते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेजेस हैं। ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसको बोलते हैं ग्रोथ। इसको बोलते हैं मैच्योर, और इसको बोलते हैं डिक्लाइन। पहले इसको लिख लीजिए, आई स्टैंड फॉर, यहाँ पे लिख लीजिए
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हर एक में आपको अलग अलग मैनेजमेंट देखना है, हर एक में प्रॉफिट चेक करना है। और ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है, कॉस्ट इज हाई और ऑलमोस्ट प्रॉफिट इज निल। यंग एज में, यंग ग्रोथ में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, और प्रॉफिट भी आ जाता है, कभी कभी प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है। और मैच्योरिटी में प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और ओल्ड एज में आप डिविडेंड खाते हैं, ठीक है। अरे बोलो बच्चा, ये यस सब सर, क्लियर हो गया? यस सर, हेलो, यस ये सर, सबको क्लियर हो गया? यस सर, अरे ये समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वो बोलता है, एक क्वेश्चन है जिसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या कर रही है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर बना रही है, दो तरह के सॉफ्टवेयर बना रही है। तो अब आप ये क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। हाँ लिखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट वन टू, ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है। अरे बोलिए बच्चा। यस सर, हाँ चलिए, ये सॉफ्टवेयर वन, इसका इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी कर दो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग, इसका सॉफ्टवेयर वन का सेलिंग प्राइस जो है वो 250 रुपए है। और एक पहले साल में यहाँ पे ईयर कर देता हूँ, ईयर वन, टू थाउजेंड यूनिट्स, 8,000, सॉफ्टवेयर टू,
ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि एक कंपनी है हु इज मेकिंग ए 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और उसका नंबर ऑफ एक साल में कितना बिक रहा है और 2 साल में कितना बिक रहा है, ये पहले नोट कर लीजिए। हेलो, पढ़ लिया सर। नहीं पढ़ रही है, नोट कर लीजिए। कर दिया सर। अच्छा कर लिया। यस सर। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर 1, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1, सॉफ्ट 2, सॉफ्ट रेवेन्यू, अच्छा नोट करते जा रहे हो ना? जी सर। हाँ ऐसा ना कि मैं बाद में करना पाऊँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए।
ये कंपनी का कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, रेवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ है। हेलो, यस सर। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो सेल कर रहा है और किस मतलब वो कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे हर एक ईयर का। अरे निकाल लेंगे। यस सर। तो हर एक ईयर का प्रॉफिट निकालिए, पहले तो रेवेन्यू निकालिए, फिर उसकी कॉस्ट निकालिए, फिर माइनस करके प्रॉफिट नीचे लिखते जाइए, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, फिर सेकंड नंबर पे देना है, और जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग निकालिए और फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे करना। आगे फिर मैं बताता हूँ। पहले साल में 700, 185, 75, 140, 15 और 50, इसको ऐड करिए कितना आता है। हेलो, यस सर। कितना टोटल कॉस्ट कितनी आती है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट सॉफ्टवेयर 1155 हाँ 1155 1155, और रेवेन्यू कितना आ रहा है? 65 रेवेन्यू कितना आ रहा है? पच्चीस 2000, मतलब 500 समथिंग आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो इसमें लॉस कितना हुआ? आपका कॉस्ट 1155 आ रही है, 1165 1165 में 500 माइनस कर दिए, कितना आ रहा है लॉस? 665 तो माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, जी सर। -665। दूसरे वाले का प्रॉफिट है सर 1015 है, 1015 का प्रॉफिट। प्रॉफिट 105 का। चलिए नेक्स्ट, थर्ड ईयर सेकंड का। 825 हाँ हो गया, चलो आगे, थर्ड वाले का। सर सेकंड वाले का है 1015। 1015,
इसका दोनों साल का सम कर दिए, कितना आ रहा है प्रॉफिट? माइनस कर दिए 665, 350। 350। ये बात समझ में आ गई? 2 Yes, साल sir. में इतना प्रॉफिट कमा के दिया इसने। दूसरे वाले का बताइए। सर लॉस है 240 का दोनों सालों में। हाँ, लॉस है सर 240 का दोनों सालों में। दोनों साल का लॉस है 240 का। Yes. चलिए आगे, नेक्स्ट। Sir, 870 profit. कितना? 870 profit. 870 प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस में आ रहा है? हैं? अरे 870 वाला सबसे प्रॉफिट दे रहा है आपको, Yes, sir. तो उसको कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. और दोनों लॉस दे रहे हैं। सर ये सेकंड वाला भी प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट है, तो सेकंड वाले को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे ज्यादा वो नहीं आ रहा। हेलो। Yes, sir. हाँ, ये बात क्लियर हो गई? अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा काम है कि कंपनी बोलती है कि आइडेंटिफाई कि किस एरिया में हमको लॉस हो रहा है और किस एरिया में हमको जोड़ देना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कर दूं। यहाँ पे 700 प्लस 0 हाउ मच? अरे बोलो, 700 प्लस 0, अरे कितना आया आंसर? R&D का खर्चा कितना है 2 साल में? हेलो। अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे। हेलो। Yes, sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ R&D पे 2 साल में कितना खर्च किया एक सॉफ्टवेयर में? 700 प्लस 0 कितना हुआ? 700. 700, ये लिख लेंगे। दूसरा, Yes, sir. इसमें डिजाइन में कितना खर्च किया 2 साल में? 185 200. प्लस 50, 200, ये कर लेंगे। Yes, sir. तीसरा, यहाँ पे 75 प्लस 225 कितना हो गया? 300. 300, ये आ गया। उसके बाद Yes, sir. उसके बाद 140 500. प्लस 500, वेरी गुड। उसके बाद 75। 1 मिनट,
अच्छा चलो इसको हटा देता हूँ, ये बाकी कैलकुलेट कर लेना। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्च आया? 75। 75, ये कर लेंगे। यस सर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 375, 375, ये कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट, यही है ना? बस यही तक था, यही तक था ना? यस सर। अब इसके टोटल कॉस्ट निकालिए कितनी आ रही है। दोनों साल के ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या कॉस्ट आ रही है? 2150, 21, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2150, यस सर। यस सर। 2150। अब आप देखिए 700 जो है वो 2150 का कितना परसेंट है ये निकालिए। 700 जो है वो 2150 इज 100, तो 700 इज हाउ मच परसेंटेज में निकालिए। 33.56, 30 2.56, 32.56। अच्छा 200 का 9.30, 9.30। नेक्स्ट 13.95, एक मिनट है, 13.95, 13.93। चलो आगे 500 का 23.26, 23.26। उसके बाद 3.49, 3.4। 49, हाँ और हो गया 17.44, 17.44। 17.4। अब आप देखिए सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर पे किसका कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज? R&D का, हाँ R&D, 32। इसका मतलब R&D का खर्चा यदि हम कम कर दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है। यस सर। और डिजाइन पे हम 9.30 कर रहे हैं, सबसे लोएस्ट कर रहे हैं। 13.93 पे जोर देने की जरूरत नहीं है। 23.96 नेक्स्ट है। हेलो, यस सर। तो इस पे हम जोर दें, इसको रिड्यूस कर दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे का प्रॉफिट बढ़ सकता है। जी सर। तो दिस इज हेल्पिंग यू टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन। हेलो, यस इस सर। तरह बाकी सॉफ्टवेयर का निकाल लेंगे। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन अपनी किताब का करिए, अपनी किताब का करिए। किस पेज पर है बच्चा? पहला ही है ना? हाँ सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन कोई दिया हुआ है? चार क्वेश्चन, नंबर 1। हेलो, 5 क्वेश्चन है सर। ये तो मैंने अभी करा दिया है, ये मैंने ये करा होगा दिया सर, है, ये हो गया। ये मैंने करा दिया अभी। यस सर। हेलो, ये मैंने करा दिया है। रेवेन्यू वही है 500 मैंने लिखा, जिसने 5 लाख लिख दिया बस है, बाकी सब वही है। चेक कर लेना जरा, ठीक है? ये परसेंटेज भी यस सर। निकालना मैं सिखा दूँ आपको। हेलो, यस यस सर। सर। हाँ जी सर। ये पहला क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए।
हाँ भाई विशाल, क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? अरे बच्चा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे को अभी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि हम लोग जल्दी कोर्स खत्म करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक मैं कोर्स खत्म कर दूँ, रोज क्लास लेके। इनका कंप्यूटर पे पेपर है, फिर बेचारे बहुत कोर्स बाकी है। नहीं तो इनका होगा कि नहीं होगा ये भी तो मालूम नहीं है अभी। फिर मैं क्या करूँ बताओ, तो क्या जवाब दूँ? तो नवंबर में तो फिर तो 5 ही क्लास मिलेंगी मेरे को, फिर कहाँ हो पाएगा ऐसा? कोई और एग्जाम कोई और हो तो मेरे को फटाफट करके मैं कर देता हूँ। सवेरे कहो तुमको, सवेरे बुला लूंगा 8 से 10, 8 से 10 है। हाँ तो फिर बच्चों से तुम पहले ना ग्रुप में बात करके ना मॉर्निंग में 8 से 10 कर दो, मैं कर दूँ। हाँ ठीक है मंडे को बता दो। हाँ बच्चा लोगों, हेलो, Yes, sir. मैंने अभी बात की है विशाल से, यस सर। तो मंडे को वो तुम लोगों का ग्रुप में डालेगा, ओके सर। और वो तब तुम लोग का कंसेंट लेगा, और फिर वो चेयरमैन से बात करके फिर वो 10 दिन कंटिन्यूस क्लास करवा देगा 8 से 10 मॉर्निंग में। बोला दोपहर को नहीं हो पाएगा। ओके सर। 8 से 10 कर दूंगा मैं, 10 दिन में 10 नवंबर को खाली कर दूंगा आप लोगों को सबको। ओके सर। यस सर। हाँ मैं जल्दी से खाली करके आपको भेजूंगा, आप जाइए पढ़ाई करिए अपना, यस सर, यस सर। ठीक है? तो आई एम टारगेटिंग कि मैं 10 नवंबर तक आपको फ्री कर दूं, ओके सर। ठीक है? जी सर। तो आप लोग तैयार रहिए, और वो जब लेटर डालेगा तो आप लोग सब अपना कंसेंट दे दीजिएगा। यस सर। मंडे को आप लोग भी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा उससे लेटर डाल के, ठीक है? ओके सर। जी सर। Okay, sir. एक्चुअली मेरे को क्लास के लिए कोई मना नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि क्लासेस भी आपकी लेट शुरू हुई हैं। अब मैं यदि नवंबर में 5 क्लासेस पढ़ाऊंगा तो आप दिसंबर में पेपर है, कहाँ आप कोर्स खत्म कर पाएंगे? तो इट इज माई एफर्ट कि मैं जल्दी जल्दी आपको खाली करके 10 दिन कंटिन्यूस लेके आपको खत्म कर दूं। थैंक यू सो मच सर। पूरा कोर्स खत्म करके भेजूंगा मैं आपको, एक एक चीज, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है? बस ओके रेगुलर सर, आप थैंक Thanks a यू lot, सर। sir. Thanks a lot. खाली क्लास में रेगुलर रहिए बस। यस सर। Yes, sir. ओके सर। तो नेक्स्ट वीक मेरी 2 क्लास हैं, और मंडे से फिर मैं या ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर। चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए पहले। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है दोनों का। डन सर। हो गया? यस सर। चलिए फिर ठीक है, आई विश यू गुड लक। और हम लोग अब नेक्स्ट वेडनेसडे और फ्राइडे, और ये तो मेरी रेगुलर क्लास चलेगी 4 से 6। एक्स्ट्रा क्लास जो होगी वो सवेरे ओके सर। 8 से 10 में करके खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है? मंडे को ओके सर। डिसाइड करेगा, ट्यूसडे को आपको आपके पास यस मैसेज सर। आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। सुबह 8 से 10 लेंगे आप? हाँ हाँ 8 से 10? 8 से 10। वो बोला दोपहर को नहीं पाई, दोपहर को बाकी शेड्यूलिंग फिक्स हो गई है। ओके सर। अरे कर लो किसी से तकलीफ उठा Okay, के कर sir. लो। ठीक है Manage सर। कर दिया, sir. ठीक है? ठीक Yes, है sir. सर। Sure. और बाकी सारे क्वेश्चन इसके करना, और मैं अगली क्लास से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 3 मैंने खत्म कर दिया, ओके सर। मतलब ये एबीसी खत्म हो गया, टारगेट खत्म हो गया, लाइफ स्टाइल खत्म हो गया, राइट साइड। ठीक है? अब मैं अगली क्लास से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। ओके ठीक है। ओके, बाय बाय, ओके एंजॉय सर। योर डे। Thank you, sir. ओके बाय 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 सर, थैंक यू सो मच। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।